Hello everyone. Today we are going to discuss a very important question from BNS 2 Unit 1, which is highly expected in the exam for 15 marks. The question is culpable homicide. Define it and explain its essential ingredients with examples. Now listen carefully. If this question comes in the exam, you should not write it in a random way. You must follow a proper structured format to score full marks. First, you will write a clear definition. Culpable homicide means causing the death of a human being by doing an act or omission with the intention or knowledge that such act is likely to cause death. Now from here, the most important part begins. You must write a heading, essential ingredients, and under this you will write 4 key points. First, there must be the death of a human being. Second, the death must be caused by an act or omission. Third, there must be a direct causal link between the act and the death. Fourth, there must be intention or knowledge that the act is likely to cause death. Now remember, this is the scoring part of your answer. Each point should be briefly explained. Next comes example, which is very important for marks. For example, if a person pushes another person violently and the person dies due to the fall, it will amount to culpable homicide. Finally, you must end your answer with a conclusion. Culpable homicide is considered the basic form of unlawful homicide and it forms the foundation for more serious offenses like murder. Now, if you follow this structure, definition, ingredient, example and conclusion, you can easily score 10 to 15 marks in the question. Now, let us understand this with a landmark case law. State of Andhra Pradesh versus Raya Varapu Punnaya, 1976. In this case, the Supreme Court clearly explained the difference between culpable homicide and murder. The court said that culpable homicide is the genus, yani general category, and the murder is the species, more serious form. Meaning, every murder is culpable homicide, but every culpable homicide is not murder. Simply put, if the intention and knowledge are at the higher level, it becomes murder. Otherwise, it remains culpable homicide. So this case is very important because it helps in understanding the grading of offenses under homicide. Now for Hindi medium students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम BNS 2 यूनिट 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में 10 या 15 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है। आपके लिए ये 15 मार्क्स के लिए होगा। कल्पेबल होमिसाइड, डिफाइन इट एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स विथ एग्जाम्पल। अब ध्यान से समझिए, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इसे रैंडमली नहीं लिखना है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर देना होता है ताकि फुल मार्क्स मिल सकें। सबसे पहले आप एक क्लियर और सिंपल डिफिनीशन लिखेंगे। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज करता है बाय डूइंग एन एक्ट और ओमिशन, और उस एक्ट में इंटेंशन या नॉलेज होता है कि डेथ हो सकती है। अब यहाँ से आंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। आपको एक हेडिंग डालनी है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, और इसके अंदर आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला, किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ होनी चाहिए, मतलब किसी व्यक्ति की एक्चुअल डेथ होनी जरूरी है। दूसरा, वह डेथ किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से होनी चाहिए, यानी डेथ किसी एक्शन, नेग्लिजेंस या फेलियर टू एक्ट के कारण हुई हो। तीसरा, एक्ट और डेथ के बीच डायरेक्ट कॉजल कनेक्शन होना चाहिए।
मतलब जो एक्ट किया गया है उसी की वजह से डेथ हुई हो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंशन या नॉलेज होना चाहिए। इंटेंशन का मतलब है कि व्यक्ति जानबूझकर ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे डेथ हो सकती है। नॉलेज का मतलब है कि उसे पता था कि उसका एक्ट डेंजरस है और उससे डेथ हो सकती है। केस लॉ। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रायावरपुर पुन्नैया 1976 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। कोर्ट ने कहा कि कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस यानी कि जनरल कैटेगरी है और मर्डर उसका स्पीसीज हायर फॉर्म है। मतलब सरल भाषा में हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड होता है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि डिफरेंस केवल डिग्री ऑफ इंटेंशन और नॉलेज का होता है। इस केस का इंपॉर्टेंस यह है कि हमें होमिसाइड ऑफेंसेस का क्लियर डिस्टिंक्शन समझाता है। अब नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को जोर से धक्का देता है और वह गिरकर मर जाता है तो यह कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब लास्ट पार्ट आता है कंक्लूजन। आपको बस एक सिंपल लाइन लिखनी है। कल्पेबल होमिसाइड इज कंसीडर्ड द बेसिक फॉर्म ऑफ अनलॉफुल होमिसाइड and it forms the foundation for more serious offenses like murder। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, डेफिनेशन, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, केस लॉ, एग्जाम्पल और कंक्लूजन, तो आप इस क्वेश्चन में आसानी से 10 या 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और याद रखिए, केस लॉ आपकी आंसर राइटिंग को स्ट्रांग बनाता है और एग्जामिनर को दिखाता है कि आपको प्रैक्टिकल लॉ समझ आता है। धन्यवाद।